बट जो पोजीशन साइजिंग है इट एडहेयर्स यू कि आपको सिस्टम के साथ बंध के चलना है। नहीं, अब मैं तो डिसिप्लिन हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन है तो एवरीथिंग विल बी इन डिसिप्लिन। Finding women in trading itself is a big thing, and finding a woman who is a systematic trader has been even difficult for us. So ज्यादा लंबा चल सकता है डीडी पीरियड, बट वो ऐसा आएगा कि जब आपका सारा लॉस एक ही बार में कवर हो जाता है। और ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड होता है। अगर हम एक दिन ट्रेंड पकड़ लिया तो हमारा सारा लॉस जो है डेली एक ही दिन में कवर हो जाता है, एंड यू नेवर नो। Welcome to yet another interesting session of Chat with Systematic Traders. I'm joined by my colleague Vishal Mehta, who is the head of Market Scanner. Today, we'll be chatting with Nisha Gautam. She has a trading and investment experience of more than 10 years. She runs an equity advisory firm named Green Circle Wealth Management, where she handles more than 5 CR of trading capital. So let me introduce you all to Nisha. yes, गुड मॉर्निंग कपिल जी, एंड गुड मॉर्निंग विशाल जी। awesome to have you, Nisha, because I'll be very honest with you. We find, and we are actually very excited because finding women in trading itself is a big thing, and finding a woman who is a systematic trader has been even difficult for us. So thank you for giving us a time to be there in this show and share your journey as a systematic trader and how it is gone about. So I'll hand it over to my able friend Kapil to ask you a lot of questions, and वो भी आपका थोड़ा डिफिकल्ट कर लेगा। व्यूअर्स, ये सेशन हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रहेगा, सो प्लीज नो रिक्वेस्ट ऑफ हिंदी ओनली और इंग्लिश ओनली। वी आर ट्राइंग टू आवर लेवल बेस्ट कि जैसे ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सके। सो कपिल, ओवर टू यू। Okay, Vishal. So first question, Nisha ji, I would like to ask कि how did you start your trading journey? मतलब कैसे आप शेयर मार्केट्स में आई, कैसे आपको ट्रेडिंग के बारे में पता लगा? मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा इनिशियली। First, I will thank you to you and your team, Vishalji especially, that you have introduced me as such a good platform, and I can share my views to the persons and trading those who are in now are doing well, and they will get well after having so much experience of mine, and they will do well. So thank you, Vishalji and Kapilji, and your market scanner team too. Now I will tell you about myself. My name is Nisha Gautam, and I have experience of more than 15 years because I've started my journey in 2004. So let me start my journey from first. As I was doing MSc IT, and I got married at that time after the completion of my MSc IT. So being a IT field, so I was very keen to do job, but my husband was not in favor to do me a job. He want me to stay at home and do whatever you want to do, you can do from home. So this triggered an idea to invest in stock market. So this is the journey from where I started in 2004. In 2004, it has been a Yeah. long time really, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया। तो आपने Yes. एज अ ट्रेडर स्टार्ट किया था कि मतलब एज एन इन्वेस्टर? एक्चुअली देखिए, जब स्टार्ट हुआ तो एक होता है पढ़ने क्या, तो पढ़ती थी, दलाल स्ट्रीट वगैरह पढ़ना शुरू किया, एंड डीमेट अकाउंट भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जाके ओपन किया। और वो जो होती है दलाल स्ट्रीट की जो अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट हैज हाँ, स्टार्टेड फ्रॉम माय जर्नी फ्रॉम देयर ओनली। लॉन्ग टर्म जो 15 डेज में आती है, फिर उसको आप बाय करोगे, सेल करोगे, दे ट्रिगर्ड माय जर्नी। और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड कि किस तरह से आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको कंपनीज के बारे में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीजें स्टार्ट हुई। अच्छा। और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए? हाँ, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए पहले सॉरी, एक्चुअली पहले क्या था, आई वाज डूइंग दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट वालों ने वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड ऑल दिस दे वर सेंडिंग मी द रिकमेंडेशन, सो आई स्टडीड अबाउट द फ्यूचर्स, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फ्यूचर आल्सो। उसके बाद बीच में आई स्टॉप माय ट्रेडिंग बिकॉज माय किड्स वर देयर, so I was not able to watch them regularly. So in 2010, I came Mumbai and took the Sher Khan franchisee.
And from my journey has started into a professional way. I have taken all the courses of NCFM and all Mhm. the professional trading, what I can do, and I have taken all the this type of courses, which enhanced Okay. my knowledge and started this journey. And in 2018, I have opened my Green Circle Wealth Management. And apart from my friends and from relatives, I have professionally I have started taking fund of near about more than 5 year. I'm managing, and after this, I've started my professional journey. Okay, that's very nice. Since 2018, you are managing funds. So Yeah, I from 2018 professionally. I'm very eager to know how the psychology of handling someone else's money is different from handling your money. मतलब आप Uh, अपना पैसा तो yes. दूसरे का पैसा जब लेते हैं तो क्या होता है कि मतलब ये लगता है कि उसका लॉस ना हो जाए। अपना तो एक टाइम के बाद आप इजीली करने लगते हैं क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है जब तो। हाँ, बिल्कुल। जब अपना करते हैं और जब क्लाइंट्स का करते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। आई विल से इट गेट्स यू इन अ स्ट्रेस आल्सो। Whenever when you are in DD, it gets you in a stress. So what I will say, it was going smooth from 2018 till now. They are very happy. But in January of 2022, it's a very difficult time for us to handle all the clients' account and get me in stress also. So personally, we talked to the client and told about strategy that each and every strategy have a DD time. And now we are in running in DD time. So you have to be in patience. And now what I have done for that, I have kept my account aside, my personal account aside. Now I'm not trading with my full capital, and now I'm focusing on my client's account, because if you're not able to focus on your client and you're on a business, you will not be growing. So for them, that they want to grow with us, so this I have done. And the volatility has been increased, so I have reduced my position sizing and all these things. And it's very difficult for to you to run a portfolio management. Rather, I will say it's easy to have your capital and to earn on your capital, because in DD time you can increase Mhm. your fund also, but you can't say your client is you want more money to and deploy your in any one of your strategy. Each and every strategy which are in the market, they have a DD time. We can't know whenever maybe some of the clients they have joined after my Deepavali bonanza, they have seen, and now they are in DD. So it's Mhm. we never know when this phase can start in the. Okay, okay. So, Nisha ji, I would like to know for how long you traded discretionary, and then when you switched to become a systematic trader, and what is So, all the what was story the behind trigger point? What was the trigger point I want to it? understand? Uh, from 2004 till 2018, I was a discretionary trader, to be very frank, because discretionary trader तो कोई भी बन जाता है। क्योंकि जब Yes. स्टार्टिंग होती है ना, तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से ही स्टार्ट होती है, जैसा मुझे लगता है। जब हमारा मन हुआ एंटर किया, जब हमें लगा लॉस हो रहा है तो निकल गए, फिर प्रॉफिट हुआ एंटर कर लिए। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। जो आज डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू आर सिस्टमेटिक ट्रेडर, बिकॉज इन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशन इन एंड आउट, वी आर क्लियर। बट इन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग थी। और 2018 में जो मिस्टर कृपाकरन है, उन्होंने गोल्डन रेशियो का मैंने उनका वेबिनार किया था। दिस ट्रिगर्स माय Okay. जर्नी फ्रॉम Mhm. डिस्क्रिशनरी टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। Wow. And I know you are one of the person who trades very large quantities when it comes to golden ratio strategy. And that strategy goes through massive profits and massive drawdowns. So अब psychologically आप बोल रहे थे कि discretionary traders you have respect them, but as in systematic trader आप में भी बहुत सारा psychology pressure होता है जब ये बहुत बड़ी quantity में ऊपर नीचे होता है, तो how do you handle that part of it? इट्स वेरी सिंपल। इन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर अगर कोई बनना चाहता है, तो मैं बोलती हूँ कि बहुत इजी है। बट जो ही और शी जो भी है, उनको पेशेंस रखना होगा। आपके जो रूल्स हैं इन होने के और आउट होने के, दे आर क्लियर।
अब प्रॉब्लम आती है कि जब आप फंड उसमें मैनेज करते हैं, जब आप फंड मैनेज कर रहे हैं, तब आप को ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पोजीशन साइजिंग है, वो नहीं होनी चाहिए डिस्टर्ब। पोजीशन साइजिंग अगर मेरे साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली डिक्रीज करना है, और ये मुझे सिखाया था मिस्टर विशाल ने। तो मिस्टर विशाल को मैं थैंक यू बोलूंगी। दैट पोजीशन साइजिंग इज डेफिनेटली हेल्पिंग मी टू हैंडल 3 डिजिट लॉट्स इजीली। सो बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट हर इंसान को सोचना चाहिए कि जब हम एक इन आ रहे हैं तो डीडी जो फेज है उसको हमारे दिमाग में रख के चलना ही है कि आपको इतना लॉस हो सकता है। डोंट पैनिक विद दैट, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर स्टॉक मार्केट। तो आपने अगर डीडी के लिए कैपिटल रखा हुआ है, डबल ऑफ योर डीडी जैसे आप लोग सजेस्ट करते हैं, तो नॉट एन इशू। आप 100 लॉट करें, 10 लॉट्स करें, और इवन यू कैन स्टार्ट विथ 2 और 3 लॉट्स ऑल्सो। तो इजीली हैंडल हो जाता है, नॉट इन एनी प्रॉब्लम आई एम फेसिंग विद दैट। रियली नाइस। सो आपने विशाल सर के बारे में बताया, विशाल सर से हमने भी बहुत सीखा है। तो आप कोई स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं क्या विशाल सर की बताई हुई? देखिए, विशाल सर से जो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, उन्होंने एक निफ्टी पिवॉट पे एक वेबिनार किया था, दैट आई अटेंडेड। और उससे पहले मैं विशाल जी को, उनके जो ब्लॉग्स होते हैं, ट्विटर हैंडल्स होते हैं, आई वाज फॉलोइंग देम। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर स्ट्रेटजी, व्हाट दे आर शेयरिंग, देयर व्यूज। तो वो जो मैंने वेबिनार किया था, दे ट्रिगर्स अ डिफरेंट जर्नी इन मी। उन्होंने जब निफ्टी पिवॉट का वेबिनार किया था, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द पोजीशन साइजिंग शीट, हाउ टू मैनेज योर पोजीशन। एंड all of us should, if those who are in this systematic trading, they should follow this position sizing sheet, because previously I was not following it, because I was not aware that it has so much of value. Mr. Kurbakaran has also told about that, but previously I was not focused on that. जब उन्होंने बताया कि पोजीशन साइजिंग कैसे आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, जब आपका फंड इंक्रीज हो रहा है, एंड व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू आर गेटिंग losses gradually, then you have to decrease your position according to that only. So that position sizing sheet, I must say, is great for me to handle all the accounts. ओके, रियली नाइस। तो जैसा कि हम जानते हैं आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उसमें जब विक्स हाई होता है तो रिस्क पर ट्रेड इंक्रीज हो जाता है, तो उसे मतलब बिल्कुल। कैसे हैंडल करने का? देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि मार्केट स्कैनर टीम ने एक और मुझे बेस्ट स्ट्रैटेजी, आई वुड से, टीएसएस दी। और टीएसएस में जो विक्स का रोल है वो उतना ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इन और आउट का जो इन का टाइमिंग है वो फिक्स है, आउट का टाइमिंग है वो फिक्स है, एसएलआर आल्सो फिक्स, इवन इफ यू आर हैविंग विक्स टू मच और टू लो। बट हाँ, विक्स ज्यादा होने से वी हैव टू पार्ट्स। अगर विक्स ज्यादा है तो यू विल गेट प्रीमियम्स एट देयर हाई लेवल्स, एंड इफ इट कम्स टू योर फेवर तो इट विल गिव यू अ गुड प्रॉफिट। आई मस्ट से कि विक्स अब भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट डू माई पोजिशन साइजिंग अकॉर्डिंग टू विक्स, बिकॉज विक्स तो आपके फेवर में भी काम कर सकती है ना। कभी ऐसा तो नहीं है ना कि नेगेटिव में ही काम करेगी। इफ यू आर गेटिंग मोर प्रीमियम्स एंड मार्केट रेंज बाउंड है, तो विल गेट अ गुड स्टार्टअप कि आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे विक्स से कभी डर नहीं लगता। विक्स से डर नहीं लगता। इनफैक्ट आई विल share one of my experience recently only. Like after the budget, when the VIX was high and the volatility crashed, okay, the next day we generated our highest ever profit, okay. And in fact, when on Thursday, when there was a big gap down, and you know, a lot of people actually put it on Twitter कि विशाल इतना बड़ा गैप डाउन है, वॉलेटिलिटी इतनी हाई है, शुड वी गो इनटू एन ऑप्शन सेलिंग? एंड एज यू राइटली मेंशन निशा, वी सेड कि हमारे रूल डिफाइंड है, हमारे स्टॉप लॉस डिफाइंड है, तो एनीवेज वो स्टॉप लॉस होते ही है। अगर हुआ कि नहीं हुआ तो हमारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। बट बिल्कुल बिल्कुल, our surprise, that turned out to be the highest ever profit that we generated in our entire history. Okay, so the point, आपने जो बोला ना कि विक्स अपने फेवर में भी आ सकता है, अगर मार्केट अलग डायरेक्शन से अपनी फेवर में चला गया और विक्स कोलैप्स हुई, it gives you benefit of it. So it's a very good point that you brought it out, Nisha. Thank you for that.
हाँ अभी आज मैं आपको ये विक्स का आपने बताया, कल का भी अगर हम सेशन लेते हैं तो 25th of Feb in the morning Vix was very high. I entered in at normal at time or actually I've changed many things in TSS. तो मैंने टाइमिंग इन किया 9:30 and 9:40 तक I was in profit. So I kept out my fund because volatility was high at entry time and it decreases within the 5 to 10 minutes. तो ये भी आपको एक बेनिफिट देती है. आप इसको ये नहीं कह सकते कि इट कैन गो इन रॉन्ग डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर्स. इट कैन गो इन फेवर ऑल्सो. So don't think VIX as your enemy. It can be your friend also. really thank you so much for this insightful talk. So मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके प्रॉफिट बुकिंग पे क्या व्यूज हैं? क्या आप किसी स्ट्रेटेजी में पिरामिडिंग फॉलो करते हैं या फिर पार्टली प्रॉफिट बुक करना? हाँ, जो पिरामिडिंग तो मैं नहीं करती हूँ, बट जैसे अभी जो हम हैं वो जैसे अब डीडी में है तो व्हाट वी कैन डू या विक्स जैसे हाई है तो हम पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. जैसे अब हमारा जो पोजीशन साइजिंग है उसका 1/3 हम बुक कर लेते हैं. जैसे विशाल जी ने बोला था कि हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं टीएसएस अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड रिस्क एपेटाइट. तो आई हैव डन सम चेंजेस इन दैट. एंट्री पॉइंट 2 parts में and exit points if you are in a good profit. Average profit अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो you can book your 1/3 part. This way I have managed my position. तो उस तरह से easy हो जाता है. अगर आपका 1/3 if you are doing it from a long time and you know कि हाँ 1000 per lot आता है 2000 per lot आता है and if you are getting a good profit, why can't we book? तो मैंने 1/3 कैपिटल बुक किया एंड बाकी रेस्ट उसको हम जाने देते हैं. जैसा रूल्स हैं लेट इट गो. तो इस अच्छा, तरह से I will कुछ ask चेंजेस you. करे हैं. Okay, perfect, Anisha. So, but I will use one term that you used. कि आप अभी एक drawdown में हो, okay? And we always say कि as a systematic trader, we are always in the drawdown. We are like fish. हम लोग हमेशा अंडर वाटर ही होते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द So, टाइम. most of the time, 95% of the times. So, what is the will and power? Because that happens with everyone, including us also. So, we have a different way of handling the drawdown. माइंडसेट एक अलग होता है, बट एक क्या चीज होती है जो हम लोग को पुश करता है कि नहीं हम लोग को सिस्टम फॉलो करनी ही है. सो व्हाट इज दैट थिंग फॉर यू दैट यू बिलीव योर क्या है कि विच हेल्प्स यू टू कंटिन्यू विद द सिस्टम एज इट इज? देखिए इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी गोल्डन रेशियो का. गोल्डन रेशियो हैज डन वेरी वेल इन 2020. आप यकीन नहीं मानेंगे इट 100% प्रॉफिट वाज देयर एंड नाउ आई विल से कि इट्स इन डीडी ऑफ वेरी मच डीडी. तो वो जो डीडी है और जो आपने प्रॉफिट अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को काफी लॉन्ग टाइम उसको प्ले करते हैं मतलब आप लॉन्ग टाइम से उसको 2 3 4 साल से कंटिन्यूसली प्ले कर रहे हैं तो दैट सिस्टम गिव्स यू अ कन्विक्शन कि हाँ आपको एक कन्विक्शन आया. आपने वो फेज भी देखा है देन कि जब आपको 100% रिटर्न मिला है और अब आप वो फेज भी देख रहे हैं कि आपको डीडी मिला है. बट दैट प्रॉफिट यू हैव अर्न has given you a conviction कि no that part will come after 6 months or 5 months. it may be a long time मतलब ज्यादा लंबा चल सकता है डीडी पीरियड बट वो ऐसा आएगा कि जब आपका सारा लॉस एक ही बार में कवर हो जाता है. क्योंकि 6 मंथ या 4 मंथ्स में एक ऐसा टाइम आता है कि मार्केट गिव्स यू अ ट्रेंड और ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड होता है. अगर हम एक दिन ट्रेंड पकड़ लिया तो हमारा सारा लॉस जो है डीडी एक ही दिन में कवर हो जाता है. एंड यू नेवर नो जैसे एक बीच में हम लोग बोलते हैं सीतारमन कैंडल आई थी वो एक ही दिन में सारा लॉस आपका कवर हो गया था. यू नेवर नो कि व्हेन कैंडल विल कम एंड यू कैन हैव अ गुड प्रॉफिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बट आपका जो पेशेंस होना चाहिए कि नहीं अभी पता चला कि 1000 पॉइंट हो गया नहीं एग्जिट करना है नहीं. यू हैव टू कैरी योर पोजीशन टिल 310 और वो जो आपको देगी जो आपको बैठ के जब आता है ना प्रॉफिट हर एक जो ट्रेडर होते हैं उनके मन में होता है कि नहीं पूरा प्रॉफिट आज ही बुक कर लेता हूँ पता नहीं आगे 310 तक लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा. तो मैं कहूंगी कि मैं तो पूरा प्रॉफिट से लॉस में बदल जाए चाहे लॉस से प्रॉफिट में बदल जाए जो टाइम है एग्जिट टाइम 310 दैट आई फॉलो.
तो वो जो आपके सिस्टम होते हैं कि नहीं नहीं मुझे फॉलो करना है, वो आपको बांध के रखते हैं। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। वो जो डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन से ही आप आगे बचपन से ही सिखाया जाता है, यू शुड फॉलो योर डिसिप्लिन। तो ये भी एक डिसिप्लिन ही है, आप फॉलो कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो 3:10 का टाइमिंग है, वो हमारा बैक टेस्ट है। तो बैक टेस्ट जो आपने किया है एंड नाउ यू आर डूइंग, आप बोलेंगे फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं। तो बैक टेस्ट में अगर आपको कन्विक्शन आया और आपने किया भी हुआ है, तो आप उसको लेके चलिए, यू विल गेट डेफिनेटली गेट प्रॉफिट। निशा, सॉरी कपिल, आई लास्ट वन मोर क्वेश्चन, सॉरी, क्योंकि Sure, ये sure. उन्होंने जो एक पॉइंट बोला, वो क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत परेशान कर रहा है बहुत टाइम से। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मदन, व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, एंड ही आल्सो यूज द सेम थिंग, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो तो आप अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होते हो। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन हूँ व्हेन इट कम्स टू द अदर पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग आई एम लाइक अ आयरन क्लॉ। सो इज इट समथिंग वेरी ट्रू फॉर यू कि भाई यही होना चाहिए, या देयर कुड बी अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स आल्सो? ट्राइंग टू गेट योर व्यू ऑन दैट, निशा। नहीं, अब मैं तो डिसिप्लिन हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन है तो एवरीथिंग शुड बी इन डिसिप्लिन। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आपने कोई सिस्टम सीखा है, आप उसको फॉलो करें तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और डिसिप्लिन तो जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है इन माय पर्सनल व्यू कि हाँ, डिसिप्लिन जरूरी है और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग तो जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करते हैं, आई डू एवरीथिंग मैनुअली। सो मैनुअली ओके। is very difficult कि आप स्क्रीन के सामने होकर you have seen the profit rising and now you are seeing after 130k it's going down and it might hit your SL also. So for a manual trader it's too difficult but you have to follow it. और ऑटोमेटिक में क्या है, आपने लगा दिया, हाँ शाम को देख लिया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बट अगर आप सामने प्रॉफिट को ग्रेजुअली देख रहे हैं, एसएल हुआ, अगेन यू हैव री एंटर्ड, फिर एसएल हुआ, तो फिर दो दो बार एसएल देखना और थर्ड टाइम उसका फिर पहले बाय लेवल ट्रिगर हुआ, वो प्रॉफिट नहीं हुआ, दो बार बाय एसएल हो गया, देन यू हैव टू एंटर इन सेल लेवल, फिर आपने सेल किया और फिर अगर दिक्कत हुआ तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं और बंदे का जो मॉरल होता है वो कम हो जाता है। बट इन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इट्स वेरी इजी कि आपने बाय भी डाल रखा है, सेल भी डाल रखा है, तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो और ज्यादा दिक्कत होती है कि 3 बार आपको ऐसे लेटे हुआ और लास्ट में पता चला आज कुछ नहीं मिला है। तो सो वो अ भी सिस्टमैटिक सिनेरियोस ट्रेडर आते हैं मार्केट कैन, में। यस, अब बट सो आप जो बोल रहे हो कि सिस्टमैटिक ट्रेडर कैन बी मैन्युअल, मतलब देयर इज नो रूल कि सिस्टमैटिक ट्रेडर हैज टू बी एन ऑटोमेटेड ट्रेडर ओनली, अ मैन्युअल ट्रेडर कैन आल्सो बी अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, राइट? हाँ राइट। बट प्रेजेंटली आई वुड से कि जो टीएसएस स्ट्रेटेजी है उसके लिए मैं ऑप्शन एक्स यूज कर रही हूँ बिकॉज बोथ द प्रीमियम्स आपके इजी होते हैं हैंडल करने। और जो गोल्डन रेशियो है उसके लिए मैं यूज मैनुअल ट्रेडिंग ही कर रही हूँ। जब ट्रिगर आने वाला होता है तब बाय मैन्युअली। लेवल डालना है या सेल डालना है, अ, तो वो इजी हो जाता है करने के लिए। So, Nisha, as you told, you have been trading in यस कपिल। triple-digit loss. Uh, as you told that you have been trading in triple-digit lots. So, I would like to know how you diversify your trading so that you manage the capital better, and how much diversification is too much diversification. मतलब हम बहुत ज़्यादा भी ना कर दें उसे कि वो ज़्यादा ही लगने लगे। तो कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं आप? जैसे टाइम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं टीएसएस में। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आई वुड से कि मैंने उसमें कुछ चेंजेस करे हैं। जैसे अगर आप 2 टाइम में एंट्री करते हैं मार्केट में, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने एंट्री करी, वो एसएल हिट हुआ, मार्केट की जो मॉर्निंग वोलेटिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव सेग्रीगेटेड एंट्री इन 2 पार्ट्स कि आपने एक 9:30 के आसपास कर ली और एक बिफोर 10:30 कर ली, तो आपका प्रीमियम्स भी डिके नहीं होगा और आपकी एंट्री भी 2 होगी, इवन इफ इट स्टॉप लॉस और फिर पता चले कि जो बची है वो भी एसएल होने वाली है, तो जो सेकेंड एंट्री है विल हेल्प यू कि हाँ आपके पास दोनों पार्ट है और आपका जो लॉस होगा वो कम होगा। और सेकेंड थिंग व्हाट आई हैव डन कि आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर उतना रिटर्न आ रहा है जो एवरेज रिटर्न से ज्यादा है, तो आप उससे कुछ 1/3 पार्ट आप निकल सकते हैं, रेस्ट होल्ड कर सकते हैं।
बट जैसा TSS में बताया गया था शुरू में कि 3 लॉट से उन्होंने बताया था कि 3 लॉट्स, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट पे जो मैंने टेस्टिंग करा है वो 3 लॉट्स पे ही है। सर ने बताया, विशाल जी ने, कि भाई स्ट्रैडल है और स्ट्रैंजल है, तीनों का अगर मैं कॉम्बो देखती हूँ तो दैट्स अ फॉर 3 लॉट्स। और अभी जो मैंने टेस्टिंग करी है दैट इज ऑल्सो फॉर द 3 लॉट्स। और SLV जो सर ने बताया दैट आई एम फॉलोइंग वो इजीली, क्योंकि आप जो थर्सडे में तो डीके होना ही है, उस दिन तो 1/3 पार्ट प्रॉफिट बुक करने का मतलब ही नहीं होता है। ऑन द वेडनेसडे इट सीम्स कि अगर वोल्टिलिटी आपकी ज्यादा है और आप ऐसे फेज में है कि आपको अभी DD से डर लगने लगा है कभी कभी, तो वो पार्ट आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा 1/3 आपने बुक कर लिया, रेस्ट को आप जाने दीजिए, फेवर में, आपके फेवर में जाए या अगेंस्ट में जाए, वो तो आपका रूल्स है। तो इस तरह से हम मैनेज कर लेते हैं। बाकी सिंपल है। और जैसे सर ने बोला है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंजल का कॉम्बो था, तो अभी मैं एक दिन जो है कुछ उसमें एसएल में भी वेरिएशन करा है। और जो वेडनेसडे और थर्सडे में तो पूरा डीके होने के लिए छोड़ देते हैं, वेडनेसडे के लिए हम स्ट्रैंजल लगाते हैं, स्ट्रैडल नहीं लगाते हैं, क्योंकि इट गिव्स अ वाइडर रेंज। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो वाइडर रेंज अगर आपके पास है तो आप इजीली काम कर सकते हैं मार्केट में। वेरी नाइस। तो मतलब आप 2 पार्ट में डाइवर्सिफाई करते हैं ट्रिपल डिजिट लॉट्स होने के बाद भी, मतलब बिल्कुल। जैसे कई लोग सजेस्ट करते हैं बहुत पार्ट्स में, आप सजेस्ट नहीं करेंगे कि मतलब कई डिफरेंट पार्ट्स में उसे डिवाइड करना। हाँ बिल्कुल, अगर आप लेट एंट्री कर रहे हैं तो सारा जो प्रीमियम है वो डिके हो चुके हैं, तो वो भी हम्म कोई मतलब नहीं होता है। तो आपकी जो एंट्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इट्स बिफोर 9:30, बिफोर 10:30। तो आपकी हम्म एंट्री अगर टाइम से है तभी आपको प्रीमियम्स मिलेंगे, एंड देन ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द मार्केट यू विल गेट अ प्रॉफिट। तो वो मैं आपको कहूंगी कि ज्यादा मल्टीपल एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। जैसा अगर किसी को सूट करता है तो वो कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि 1 से 2 एंट्री सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ओके। तो आपने जैसे बताया गोल्डन रेशियो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। तो उसमें आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं या फिर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में फिक्स स्टॉप लॉस रखते हैं? देखिए, इसमें क्या? जब आपको कोई चीज मिलती है ना, तो आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप सोचते हैं आई कैन डू हम्म इट बेटर, और हो सकता है मैं बेटर कर लूं। ये हम्म हमारी जो होती है ना, अरे नहीं इसने ऐसा बताया, वी कैन चेंज इट। तो आई हैव आल्सो डन सम चेंजेस कि अभी मान लीजिए आपने 10 लॉट्स है, तो 1/3 कैपिटल या 1/4 कैपिटल आई हैव अलॉटेड अकॉर्डिंग टू माय रूल्स, तो उसमें मैंने चेंजेस करके देखे। कुछ एसएल में मैंने सोचा कि ग्रेजुअली, अरे 1000 पॉइंट आता है, लास्ट में आपको 100 पॉइंट ही बच जाता है, तो वो भी करके देखा, बट इट डजंट वर्क। तो फाइनली जो मैं मेरा क्या है, जो डेली ट्रेड्स होती हैं उसको मैं इन और आउट पूरा लिखती हूँ, P&L लिखती हूँ डेली, पूरा मैनुअली लिखती हूँ। तो उससे मुझे एनालिसिस मिलता है कि नहीं, जो मैं कर रही थी या जो मैं सोच रही थी दैट वाज रॉन्ग, एंड कृपाकरण सर वाज वेरी राइट। और उन्होंने जो बताया कि भाई आपको इन होना है और छोड़ देना है, 310 को एग्जिट करना है, अगर जब तक या तो फिर ऐसा लेट होगा या फिर, तो वो जो उन्होंने बताया वो अभी मैं फॉलो कर रही हूँ। उसमें मैंने एक मेजर चेंज किया है, जो अभी मैंने, जो मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू माय व्यू आई हैव चेंज किया है मैंने। उसमें क्या, मैंने एक मेजर चेंज किया है, कभी कभी फ्रीक ट्रेड होते हैं मॉर्निंग में, वो जो फर्स्ट 1 मिनट कैंडल होती है, वो उसके जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, या तो बहुत ऊपर होगा या बहुत नीचे होगा। तो वो जो 1 मिनट का या 1 सेकंड का ही, आई वुड से कि 1 मिनट तो नहीं, 1 सेकंड में जो एक कैंडल सिर्फ आपको दिखती है गई और आई, तो दैट वाज नॉट अ ओरिजिनल ट्रेड। तो अगर वो फ्यूचर के प्राइस से सिंक नहीं हो रही है, तो आई डोंट कंसिडर दैट फर्स्ट मिनट कैंडल। तो अगर वो 1 सेकंड या 2 सेकंड में कोई ऐसा कैंडल आया, तो वो मैं इग्नोर करके, एंड बाकी रेस्ट बिल्कुल मैंने सेम रखा हुआ है, जो उनके इन और आउट का जो लेवल्स बनाने का जो प्रोसीजर है वो ही फॉलो करती हूँ। बस वो ही मैंने सिर्फ चेंज किया है, क्योंकि उससे क्या होता है, कभी कभी आप फेक एंट्री से बच जाते हैं और जो ओरिजिनल एंट्री है उसमें एंटर करते हैं, यू गेट अ गुड फ्री प्रॉफिट। ट्रेड, फ्री ट्रेड से आप बेसिकली फ्री ट्रेड इग्नोर कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, फ्री ट्रेड हम इग्नोर कर रहे हैं। विशाल जी, आप कुछ पूछना हाँ। चाहेंगे? सो आपने बताई दो स्ट्रेटेजी के बारे में।
So how do you find the new strategies, और आपके आइडियाज कहाँ से आते हैं कि if a new person wants to start a journey, where he or she should look out for the ideas? हाँ, मैंने एक अपना पर्सनल पोजिशनल सिस्टम है और उसमें मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ एंड इट्स गिविंग अ गुड रिटर्न। दैट्स बेस्ड ऑन निफ्टी 50 एंड बेस्ड ऑन द 30 मिनट कैंडल चार्ट। वो भी डिस्क्रिप्शनल नहीं है, उसके रूल्स हैं एंट्री के एंड एग्जिट के, और वो पोजिशनल सिस्टम है दैट आई एम ऑल्सो ट्रेडिंग विद अ गुड लॉट्स। और पोजीशन साइजिंग शीट तो है ही अपनी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो सिस्टम है वो भी मुझे एक हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैं अपने अकाउंट में जैसे ट्रेड करती हूँ, तो वो मेरा अपना पोजीशन सिस्टम हुआ। और जब मुझे वेडनेसडे थर्सडे में आपकी टीएसएस लगानी है तो उसको हेज किया, आई गेट अ गुड फंड और फिर मैंने उसको ट्रेड कर लेती हूँ। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मतलब जनरेट अ गुड रिटर्न विद दैट आल्सो। हाँ, सो निशा जी, मेरा पॉइंट है कि अगर ये आपने पोजीशन सिस्टम बनाई, तो उसकी आइडिया आपको स्क्रीन देके आई या फिर आपने कहीं बुक में पढ़ा या कोई ब्लॉग पढ़ा that really helped you, or have you read books around the systematic trading which helped you? नहीं, आपके जो ब्लॉग्स होते हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, ट्विटर पे भी पूरा फॉलो करती हूँ, और मुझे पता चला कि पोजीशन साइजिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ जब हम ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल होती है, हम सोचते हैं कि इसके ऊपर ही पूरा रिटर्न आज बना के देखेंगे, और Hmm. फिर हम उसको डाल देते हैं। फिर वो जैसे ही आपके अगेंस्ट जाती है, तभी हम सोचते हैं कि अरे अब तो ये चलेगी, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट जो पोजीशन साइजिंग है, इट एडहेयर्स यू कि आपको सिस्टम के साथ बंध के चलना है। और इवन आपका 10 लाख का कैपिटल इरोड होके 8 लाख आ गया है, तो आपको 8 लाख के साथ मैनेज करना है। ये नहीं कि 8 लाख को फिर आप 2 लाख अपने सेविंग अकाउंट से निकाल के उसको 10 बना रहे हैं, फिर उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इट हेल्प्स यू कि आपको जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट करने का सोचा था, उसी से ही आप ग्रो करेंगे। यू आर नॉट गिविंग योर हार्ड अर्न मनी, आप डालते जा रहे हैं, पता चले वो भी फिर डीडी में चले गए। तो जो आपने सिस्टम बताए हुए हैं कि भाई आपको डीडी के लिए इतना अमाउंट रखना है, आपकी जो कैपिटल आपकी इतनी आपको इन्वेस्ट करना है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड भी है। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग दैट यू वांट टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज, तो आपका 10 लाख से तो ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। तो आपने जो है पता चला कि आपने पोजीशन साइजिंग रूल फॉलो नहीं करा, आप यू आर नॉट अ डिसिप्लिन ट्रेडर, तो आपने 2 लाख और डाल दिया, फिर 2 और डाल दिया, क्योंकि आप जो लेवल्स हैं, आप पहले 10 लॉट पे काम कर रहे थे, फिर 10 पे ही करेंगे। भले ही आपकी कैपिटल 8 हो गई थी, फिर आपने 12 लाख डाल दिया अपने अकाउंट से, फिर आप उस पे, तो आपका जो लॉस है वो कवर होने में टाइम, भले ही आप जल्दी कवर कर लेंगे, बट अगर वो डीडी में चला गया तो वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस दे देगा। तो मेंटली स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए इंसान को। तभी आप कोई भी काम करेंगे तो आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अंदर से खुश है तभी आप कुछ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट क्लियर है कि भाई मैं इतना ही डालूँगा, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो ये जब दोनों चीज़ आपके पास क्लियर है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और तभी आपके अंदर एक कन्विक्शन आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है ट्रेडिंग का। एंड दैट हेल्प्स मी है कि हाँ, अब मैं कर सकती हूँ। इस तरह से आगे बढ़ सकती हूँ। So आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आई थिंक, so this was the question asked at a market visit level also, कि अगर आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी में या आपकी सक्सेस में, आप जो ट्रिपल डिजिट लॉट्स ट्रेड कर रहे हो, हुँ, सो साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग हुँ, और ट्रेडिंग सिस्टम, जैसे कि हम हुँ, लोग ने गोल्डन रेशियो की बात की, टीएसएस की बात की या अदर फॉर्मेशंस की बात की, if I want to give you 100%, what do you हुँ। think? What is the contribution to your success of money management in terms of percentage? What is the percentage contribution of psychology and the trading system? देखिए, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा पोजीशन साइज़िंग मैटर करता है, आपकी साइकोलॉजी भी मैटर करती है कि हाउ मच रिस्क एपेटाइट यू आर हैविंग। हर एक जो पर्सन होती है उनकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। और इवन आई वुड से कि जो हमारा सिनेरियो है, जो हमारे इंडिया में भी अगर आप देखोगे, लेडीज़ आर नॉट इन दिस स्टॉक मार्केट एट सच लेवल। तो उसमें भी सोच के कि भई हाँ, जो हार्ड एंड मनी है, मोस्टली हस्बैंड के हुए, और उसमें से भी निकाल के आपको ऐसा करके दिखाना है कि हाँ भाई, आप एक लेवल पे आओगे, तो पहले आपको एक सिस्टम चाहिए। बिना सिस्टम के तो आप कर नहीं सकते। तो फॉर द सिस्टम यू आर हैविंग, आपके पास एक गुड सिस्टम हो गया, देन यू वांट अ गुड कैपिटल ऑन दैट कि भाई हाँ, आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए। सिस्टम आपको पता है कि करना क्या है,
बट इफ यू डोंट हैव कैपिटल सो यू कांट डू एनीथिंग। एंड आपके पास दोनों चीज हो गई, फिर आपके पास साइकोलॉजिकली अच्छा आपका होना चाहिए कि हाँ आप साइकोलॉजिकली ठीक है, आप उस काम को कर सकते हैं, यू आर हैव अ कन्विक्शन कि हाँ अंदर से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सिस्टम आपने सीखा है वो उसको आप करके अच्छे से करके तब दिखा सकें। तो वो तीनों चीज मैटर करती हैं। और आई वुड से कि हाँ पहले आपके पास एक अच्छा गुड सिस्टम होना चाहिए। पहले आप सिस्टम को देखें, जानें, बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेडिंग करें। जब आपको कन्विक्शन आ जाए देन ओनली यू कैन मूव टू द मार्केट। तब आप आइए मार्केट में, मार्केट कभी कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे ही है। तो अब जब एक लेवल आ गया, आप समझ गए, आपके साइकोलॉजिकली यू आर कन्विंस, तब आप मार्केट में एंटर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा पहले आ गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तब आप वो साइकोलॉजिकली प्रेशर संभाल नहीं पाएंगे। तो ये हम सबको सोच के, जो अभी इन्वेस्टर्स हैं उनको सोच के फिर आगे बढ़ना चाहिए। So, So, sorry, go ahead, Kapil. निशा जी, आप साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, सो आई हैव अ क्वेश्चन ऑन साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मानूं कि आज मैं 10 lakhs की कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं और कल मेरे पास एक्स्ट्रा 40 lakhs अवेलेबिलिटी है कहीं से, तो मैं स्केल अप कैसे करूं 10 से 50 तक जाने के लिए? हाँ तो ग्रेजुअली स्लोली करना चाहिए, क्या आपके व्यूज हैं उसके ऊपर? हाँ तो मेरा ये है कि इफ यू हैव 10 लाख रुपीज, कीप योर 40 लाख असाइड। जब आपकी सिस्टम ट्रेडिंग एक बीडी फेज में आएंगे तब आप उसको ग्रेजुअली एंटर करेंगे। क्योंकि जब आप 8 to 10, जैसे अभी मैं गोल्डन रेशियो की बात करूं, यू आर हैविंग 8 to 10 लूजिंग स्ट्रीक्स एक साथ मिलेंगे आपको। एक 8 to 10 लूजिंग स्ट्रीक्स हो गए, तो जब आपके पास 4 या 5 लूजिंग स्ट्रीक्स हो गए तब आप कैपिटल एड ऑन कर सकते हैं उसमें। फिर आपके पास आपको लगेगा कि हाँ भाई अब फिर से दोबारा एक लूजिंग स्ट्रीक फेज आया, देन यू ऐड योर कैपिटल। बिकॉज अगर आपने एक साथ कैपिटल ऐड ऑन करे और आ गया लूजिंग स्ट्रीक, तो फिर आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आई वुड से कि जब आपके पास एक डीडी फेज आता है तो दैट्स अ राइट टाइम इफ यू हैव अ गुड कैपिटल एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट, कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये नहीं कि उसको डीडी को कवर करने के लिए आपको डालना है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट तब आप उसमें जो है 10 लाख 20 लाख ग्रेजुअली ऐड करें, ना कि एक साथ। तो 10 20 एंड यू कैन ऐड विद 30 and 40। आई वुड से लाइक दैट। Yeah, so Nisha ji, I think so you have put out a brilliant point. क्योंकि मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी व्हेन द स्ट्रेटजी इज डूइंग वेल। ओके। तो क्या होता है कि अगर स्ट्रेटजी परफॉर्म कर रही है तो और पैसा डालो, क्योंकि और पैसा बनाएंगे, लेकिन देन वही मैक्सिमम कैपिटल पे आपका लूजिंग स्ट्रीक आता है। बट यू टर्न द टेबल अराउंड, और आपने बोला कि बॉस मुझे पता है मेरी स्ट्रेटेजी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, पैसा बना रही है, तो ड्रॉ बिल्कुल। डाउन में अगर मैं जब इन्वेस्ट करूंगी तभी ही सबसे ज्यादा मेरा रिटर्न ऑफ माय इन्वेस्टमेंट विल कम इन। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। थैंक्स अ लॉट निशा फॉर दैट। थैंक यू। रियली मतलब सभी चाहते कि जब पैसे बन रहे हो तब डालिए जाए, मगर ड्रॉ डाउन फेज में पैसे डालने के लिए आई गेस यू नीड अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने खड़ा कर दिया कि ड्रॉ डाउन में है। अगर चलो आज की तारीख में तो सिस्टम्स चल रही है, पर वेयर वुड यू स्टॉप अ सिस्टम? बिकॉज ये क्वेश्चन हर एक सिस्टमेटिक ट्रेडर की लाइफ में कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है कि मेरी स्ट्रेटेजी चलना बंद हो गई और मैं ये ड्रॉडाउन में चल रहा है कि ये बंद हो गया है। तो उसका आंसर कैसे देते हो आप? हाउ डू यू थिंक, वेयर वुड यू स्टॉप ट्रेडिंग से जीआर और टीएसएस इन योर माइंड? हाँ, ऐसे बहुत सारे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और भी मैंने सीखे थे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि व्हेन शुड वी स्टॉप दैट सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। आपको यू नेवर नो कि विच सिस्टमैटिक ट्रेडिंग विल वर्क और विच विल नॉट वर्क। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि हाउ मच रिस्क एपेटाइट आई एम हैविंग। तो अगर आपको क्यों नई स्ट्रैटेजी आपको डिप्लॉय करना है आपका मनी, यू शुड हैव अ कन्विक्शन कि हाँ मैं 5 लाख रुपीज या 2 लाख या 3 लाख, जिस तरह की स्ट्रैटेजी है मैं उसमें उतना डालने के लिए अंदर मेरे पास होना चाहिए कि हाँ मैं उतना रिस्क लूंगा। उसके बाद जब आप रिस्क ले रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख का आपने रिस्क लिया और आपको अंदर ये है कि मैं 5 लाख पे भाई मैं जो 2 लाख का रिस्क होगा, 5 लाख कैपिटल आई विल डिप्लॉय इन दिस सिस्टम। जब आपका भाई 2 लाख का रिस्क हो जाए
then you should take a decision कि हाँ भाई मेरा तो अब जितना मेरा risk appetite था I have taken, still strategy is not working, I would say stop to this strategy and switch over to the next strategy. That I have done with many of the systematic trading, because you don't have more and more capital, और आपके पास इतनी capital नहीं है कि आप उसको लगाते जाए टेस्टिंग करते जाए. एक हर चीज की एक लिमिट होती है, तो दैट लिमिट एंड दैट लाइन यू हैव टू ड्रॉ, एंड दैट लाइन इज वेरी पर्सन टू पर्सन, कितना उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो वो लाइन हम ही ड्रॉ करेंगे और कोई ड्रॉ नहीं कर सकता. और वो तभी, अब मान लीजिए अब जिसने आज गोल्डन रेशियो में लगाया पैसा, वो 10 दिन से लूजिंग स्ट्रीक देख रहा है, और उसके बाद 11वें दिन पता चला उसका जो रिस्क एपेटाइट लेने का था वो खत्म हो गया और 11वें दिन ही पैसा बन गया. तो ये हम कह नहीं सकते, बट अगर एक रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इन और आउट कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में. मेरा तो अपना यही व्यू है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिस्टम ऐसे छोड़े हैं जो बाद में हो सकता है मैंने सुना है कि अच्छे चल रहे थे, बट वो आपको एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ भाई आप कितना रिस्क ले सकते हैं. अगर आपने रिस्क लेके देख लिया है वो वर्क नहीं कर रहा है, लीव इट, गो फॉर द नेक्स्ट सिस्टम. और उसके बाद आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन डू अ पेपर ट्रेडिंग. आपने रिस्क ले लिया, आपने सिस्टम को स्टॉप कर दिया, यू डू विद द पेपर ट्रेडिंग. आप पेपर ट्रेडिंग पे फिर आपको कन्विक्शन आता है, देन यू स्टार्ट विद दैट विद अ स्मॉल कैपिटल. मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से आप उसको स्टॉप करें. आपको लगा, आपने रिस्क लेके देखा, इट्स नॉट वर्किंग, यू हैव टेकन अ गुड रिस्क, अब आप उसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए कि हाँ वाकई ये चीज जो आपको सिखाई गई थी वो काम कर रही थी, या हो सकता है आपने उसको गलत समझा. आपने रिस्क ले लिया, आपने सब कुछ करा, बैक टेस्ट किया, पेपर ट्रेडिंग करी, फॉरवर्ड टेस्टिंग हो गई, जब कन्विक्शन आया देन स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट. फिर आप हो सकता है ज्यादा अच्छा बेटर कर सकें, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम में अच्छा कन्विक्शन आ गया है. So conviction is the most important thing, I think so, in the journey. So that's very important. So yeah, I have exhausted all the questions. Kapil, you have more? And no, I don't have anything more. I think we can have a rapid fire with Sure. Nisha. So Nisha, we will ask you an immediate question and you have to Okay. answer them in a very quick succession. So that's your first answer will be your heart answer, not your mind answer. Okay. Sure. So Nisha, option selling or option buying? I will prefer only option selling. Discretionary or systematic? Systematic trading. Nifty or bank nifty? Nifty and bank nifty both. If you have to Because choose one. nifty for TSS, bank nifty for golden ratio. Good one. Okay. Trading or investing? Trading. Okay, Yes. I think we are done with the questions now. Thank you, Nisha. I think it's a brilliant learning. And if you ask me, what was the biggest learning for me during this entire, session that we just had? First was very important was like investing when you're in drawdown. There will be a lot of people जो उल्टा करे, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा learning था. And I have done it personally, to be honest, for myself also. जब भी मेरी drawdown में system चलती है, because I know in the learning it will be positive expectancy. And second is the psychology of how to handle of the position sizing. So that was a very good learning for me. How about you, Kapil? What was your learning? Yeah, this was a very important learning for me as well, because honestly, I'll tell you, I do the opposite. Because when Okay. in drawdown, I don't like to invest. My idea here is that if the system might fail, but she rightly pointed out, if you had good conviction in the system, then yeah, you can go ahead with that kind of a strategy. So thanks a lot, Nisha, for taking a time out and doing this show with us. And we hope to see you soon in the next another episode in the future. Okay. Thank you, Vishalji. Thank you, Kapilji, for giving me this opportunity, and thank you to your team also. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Thank you so much, Nisha. Bye. Good.